अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट प्ले को। और ये प्ले हमारी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक का सेक्शन सी से लिया गया है। इस प्ले का इस बुक में सीन 3 को डिस्कस किया गया है और आज के इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1 हमारी जो है उसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हमने सिनोनिम्स फाइंड करने हैं और फिर उनको हमने यूज़ करना है अपने सेंटेंस में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है, इम्प्रॉम्प्टू मीन्स अनप्रिपेयर्ड। उसका अगर हम सेंटेंस बनाना है अब हमें उसमें क्या होगा, आई वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट दैट्स वाई आई फेल्ड। उसके बाद हमारा सेकेंड वर्ड है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक मीन्स एन इंसेन पर्सन। हर सन थिंग शी इज एन एब्सोल्यूट raving lunatic. The third number is blazing. Blazing means very hot. Ray was getting very hot and bothered about the idea. Number 4 is giddy. Giddy means happy or excited. A happy parents make for a happy child. The next word is reconnoitering. Reconnoitering means exploring. We will be exploring different approaches to gathering information. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है कमांड या फिर सोल्यूशन। ही कमांडेड हिज ट्रूप टू अटैक। The next word is primitive. Primitive means uncivilized. I think any sport involving harm to animal is barbaric and uncivilized. Next word is seeth. Seeth means being furious. Being furious is not a good thing. We have to control ourselves in such situation. Next word is anxious. Anxious का मीनिंग क्या है, ingratiating in manner or speech. He is ingratiating in manners. The next word is fidget. Fidget का अगर हम देखें इसका मीनिंग है nervous, bored और excited. अगर हम इसकी और explanation देखें तो इसमें क्या है, if you fidget you keep moving your hands or feet slightly or changing your position slightly. For example, because you are nervous, bored or excited. ठीक है, ये एक फीलिंग या कंडीशन है आपकी कि जब आप नर्वस फील करते हैं या फिर बोर फील करते हैं या फिर एक्साइटेड फील करते हैं तो आपकी जो कंडीशन होती है वो इस टाइप की होती है। आपकी बॉडी जेस्चर जो होते हैं उसमें आप अपने मूव हैंड्स को मूव कर रहे होते हैं हल्का या फिर पैरों को, तो ये आपकी या फिर आपने अपनी पोजीशन को जो है चेंज कर रहे होते हैं, तो ये इसका मतलब होता है फिजिट। ठीक है, Brenda fidget in her seat. Sordid. Sordid mean immoral or dishonest. Immoral and dishonest अगर इसकी explanation देखें, if you describe someone's behavior as sordid, you mean that it is immoral or dishonest. There are people, sentence अगर हम इसका देखें, there are people who think that birth control and abortion are immoral. The next word is resonant, mean deep and strong voice. In our drama, Miss Spelling has a deep and strong voice because he was a commentator at television. एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारी। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमें राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्ले टेक प्लेस इन स्मॉल स्पर्ब, एंड हमारा जो राइट आंसर है वो है वर्जीनिया। द सेकंड वर्ड इज, सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, स्पेलिंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेलिंग के बाद है हमारा देश, उसमें हैगा डिनाइज। Spalding criticized John for growing peanuts, जो है हमारा राइट आंसर है। Creton appears to be in his 40s. The right answer is. The impression of Creton on seeing the inside of the house was delighted. B is the right one. The spaceship landed in Mr. Spalding's rose garden. Mrs. Spalding's rose garden. ठीक है, the next is Creton said that the Earthmen were his hobby. A is the right answer. Creton mistakenly thought that he had come to the earth in 18th century, 19th century, and the right one is 20th century. The first person who arrived to investigate the spaceship was Power. Power जो हमारे character का name है।
Creton said that people on his planet didn't die. The right one is didn't die. C answer. Creton's spaceship was of elliptical, ठीक है। एलिप्टिकल जो रहती है वो भी एक ओवल शेप की तरह होती है, लेकिन वो थोड़ी और ज़्यादा जो है चौड़ी होती है, और सर्कुलर भी नहीं होता है कि एक सर्कल को अगर हम खींच दें तो वो हमारी शेप जो होती है वो क्या होती है, इलिप्टिकल शेप। जॉन couldn't use the telephone because power declared martial law, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 13 MCQ है वो है जनरल पावर was thinking about his promotion. A is the right answer. According to Cretan civilization is just full bloom. Answer C is the right one. And 15, the element of science fiction in this passage are most pronounced in Cretans belong to another breed of human. ठीक है। Creton placed an invisible wall around his spaceship because the army was going to take it apart. Powers accused Creton of coming to Earth. D is the right answer, to reconnoiter before an invasion. Creton said John's thought about Ellen were purple. Creton considered human civilization primitive. Creton intended to take charge of world. ठीक है, ये हमारे कुछ MCQs थे और हमारे MCQs प्ले से रिलेटेड थे। उसमें अगर हम देखें तो तमाम जो MCQs थे वो कैरेक्टर से अबाउट थे, या फिर जो हमारे सीन के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनके अबाउट थे। ठीक है, तो हमने इसके राइट आंसर्स को कवर किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है। एक्सरसाइज नंबर 3 में हमें क्या करना है कि हमने टेक्स्ट को देखना है, उसके बाद हमें कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो डायलॉग किसने कहा था कॉलम बी के अंदर, एंड राइट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डायलॉग। ठीक है, और हमें उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है डायलॉग का कि किस वे में इसको कहा गया है। ठीक है, एक फर्स्ट वन जो है हमें एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखा दिया गया है और बाकी अब हमें करने हैं। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे जो फर्स्ट है स्टेटमेंट या डायलॉग जो हमें बुक में करके दिखाया हुआ है, पहले हमें बताना है वो किसने कहा है, किस करेक्टर ने, और फिर हमने उसके स्टेटमेंट बतानी है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। तो हमारा फर्स्ट डायलॉग था फेयर इनफ, ऑल राइट, आई विल स्टे फॉर अ व्हाइल। ठीक है, ये किसने कहा था, क्रिटॉन ने कहा था। ये कब कहा था उसने, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। दिस स्टेटमेंट और डायलॉग इज सेड टू स्पेल्डिंग। ठीक है, ये उसने स्पेल्डिंग को कहा था व्हेन स्पेल्डिंग इंस्ट्रक्टेड हिम टू स्टे बिकॉज ऑफ जनरल पावर्स इंटरव्यू। ठीक है, कि जब स्पेल्डिंग ने उसे कहा था कि कोई इंटरव्यू होना है जनरल पावर का, तो फिर उसने जो है इसको इंस्ट्रक्ट किया था और उसने उसको रुकने का कहा था। तो फिर क्रिटॉन ने उस के जवाब में ये रिप्लाई स्पेल्डिंग को किया था। इसी तरीके से अब हमें आगे जो दिए हुए हैं वो हमने करने हैं कवर। तो हमारी जो सेकंड डायलॉग है, ही हैज़ नो गेट अप एंड गो। ठीक है, ये हमें डायलॉग बताना है किसने कहा, हमने अपने टेक्स्ट को देखना है और फिर हमें पता चला ये स्पेल्डिंग ने कहा था। और ये किसके बारे में कहा, सैड अबाउट जॉन। स्पेल्डिंग ने जॉन के बारे में कहा था और अब किससे कहा था, मिसिज स्पेल्डिंग से, अपनी वाइफ से जो है उन्होंने जॉन के बारे में इसके बात की थी। द थर्ड स्टेटमेंट, आई एम अ हॉबियस्ट, आई लव टू गेट अबाउट। ठीक है, आई एम अ हॉबियस्ट एंड आई लव टू गेट अबाउट, ये किसने कहा था, क्रिटॉन ने कहा था। सेट टू पावर्स, ये क्रिटॉन ने पावर को कहा था। कब कहा था, व्हेन पावर आस्क्ड व्हाई आर यू हियर, जब पावर ने उससे पूछा था कि वो यहाँ पर क्यों आया है। ठीक है, वो किसी एक एलियन है क्रिटॉन जो कि किसी और जगह से आया है और अब जो पावर जो इससे बात इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो फिर उसके रिप्लाई में जो है क्रिटॉन ने उसको ये रिप्लाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बट आई प्रेफर द वन मेड ऑफ मेटल, द वन यू यूज टू वेयर, यू नो, विद द फीदर ऑन टॉप। ये भी किसने कहा, ये भी क्रिटॉन ने कहा। और किसको कहा था, पावर को कहा था। व्हेन ही आस्क्ड हिम दैट यू आर द रेजिडेंट ऑफ अदर प्लेनेट, जब वो उससे पूछ रहा होता है कि आप कौन से प्लेनेट से हैं, या फिर वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है क्रिटॉन से, जब उसको वो पूछताछ कर रहा होता है, तब वो जो है ये क्रिटॉन उसके आंसर में कहता है। ठीक है, क्रिटॉन
अब हमारा poor fragile butterfly, such brief little moment in the sun. ये किसने कहा? क्रिटॉन ने कहा था ये भी। और किसको कहा? ये पावर को कहा। when he didn't get his point, when he didn't get to know about his original identity. जब पावर को नहीं पता चल रहा था, वो उसको उसके ऊपर शक कर रहा था कि ये कोई जासूस तो नहीं है, या फिर किस वजह से आया है, वो बहुत उसके लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो फिर क्रिटॉन ने उसके रिप्लाई में ये कहा कि उसमें अगर हम टेक्स्ट में भी देखें तो उसमें क्या कहा था कि तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आएगी, उसके लिए हमें किसी एक मैथमेटिशियन की ज़रूरत है। तो लेकिन पावर जो उसके बातों को नहीं समझ पा रहा होता है, तो उसके रिप्लाई में वही क्या कहता है? पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाई, सच लिटिल मोमेंट इन द सन। नेक्स्ट है हमारा आई लाइक हिज विस्कर, दे आर सो वेरी कंफर्टिंग। ये किसने कहा? मिसेस स्पेल्डिंग ने कहा था। और किसको कहा था? पावर को कहा था, जब वो क्रिटॉन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज अब अगर हम देखें तो एक्सरसाइज नंबर 4, वर्क इंडिविजुअली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ साइंस फिक्शन यू फाइंड इन द प्ले। हमने एक लिस्ट बनानी है उन एलिमेंट्स की जो कि साइंस फिक्शन है, जो कि हमें प्ले के अंदर दिखते हैं। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज नंबर 4 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो 25 हैं क्वेश्चन आंसर। तो फिर इस वीडियो के अंदर नहीं, हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को कवर करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को। एक्सरसाइज नंबर 5 है हमारी, हमने वर्क करना है पेयर में, और फिर जो आपको कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, और आपने उनको ऑर्डर में करना है कि कौन सा ऑर्डर पहले आएगा। हम अगर इनको ऑर्डर वाइज देखें, आपको ये इस तरीके का टेबल दिया हुआ है, या आपको ब्लैंक दिया गया है, आपने इसको ऑर्डर में करना है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा? स्पेल्डिंग मेक अ ब्रॉडकास्ट एंड डिनाइज एनी स्पेसशिप लैंडिंग ऑन अर्थ। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ये सबसे पहले आएगा। और फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड है वो क्या होगा? जॉन स्पॉट्स आ स्पेसशिप। एंड थर्ड इवेंट कौन सा हुआ? फिर थर्ड इवेंट था क्रिटॉन अराइव ऑन द अर्थ। देन फोर्थ इवेंट कौन सा हुआ हमारा? जनरल पावर्स कम विथ हिज एड। और फिर उसके बाद हमारा जो पांचवा इवेंट हुआ वो हुआ हमारा जनरल पावर्स एंड क्रिटॉन हैव अ कन्वर्सेशन इन द स्टडी। देन हमारा जो नेक्स्ट इवेंट हुआ प्ले के अंदर वो क्या था? एडी स्टॉप स्पेलिंग फॉर फ्रॉम मेकिंग अ कॉल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इवेंट हुआ वो था क्रिंटॉन रीड द माइंड ऑफ जनरल पावर्स। ठीक है, ये हमारा जो करेक्टर है, और हमारा ये इवेंट था, ये नंबर 7 पे आ रहा है। नंबर 7 के बाद हमारा जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो था क्रिटॉन रीड द माइंड ऑफ द जॉन एंड एलन। ये हमारा नंबर 8 है। नंबर 9 पे होगा हमारा इवेंट क्रिटॉन अनाउंस टू टेक ओवर द वर्ल्ड। और नंबर 10 पे आएगा जनरल पावर्स ऑर्डर टू ग्रेप क्रिटॉन। दिस इज नंबर 10। ठीक है, सो ये हमारे कुछ इवेंट्स दिए गए थे, हमने उसको ऑर्डर में लिखना है कि कौन सा ऑर्डर जो है सबसे पहले आएगा। तो आपने अगर यहाँ पर आपको इस तरीके से दिए हुए हैं, आपने ये देखना है अपने प्ले के अंदर, और फिर उसको ऑर्डर पे लिखना है कि ये कब हुआ, और पहला इवेंट कौन सा था, फिर बाद में दूसरा कौन सा इवेंट हुआ, फिर तीसरा कौन सा हुआ। इसी तरीके से आपने इसको असेंबल करना है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी इस प्ले की। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि हम जो है के तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज को कवर करने जा रहे हैं, और इसके प्ले के जो एक्सरसाइज है के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।